Hello and welcome to my online prep. Hope you are doing well. Now the wait is over. Finally, IIBF has released the much awaited, much needed CIB syllabus for June 2023 onwards exams. Earlier we have three papers, two compulsory papers in CIB exam, that is Advanced Bank Management and Bank Financial Management, and one is elective paper you have to choose among given subjects. Now they have changed the subject. They have introduced four compulsory paper and one elective paper. Advanced Bank Management will there. Bank Financial Management will also be there. Introduction of two new paper, that is Advanced Business and Financial Management and Banking Regulation and Business Law. These are the two papers that have been introduced in CIB exam. And one elective paper will remain same. You have to pass in all 5 exams. So they have just published all the details and on the syllabus, rule and regulation in details. So let's see what are the changes that has been made in June 2023 CIB exam. तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं CIB रूल एंड सिलेबस 2023 okay, let's see here. Subject of examination, as I tell you, Advanced Bank Management will remain same, ABM will remain there, Bank Financial Management will remain there. Introduction of paper Advanced Business and Financial Management, Advanced Business and Financial Management, that is ABFM, and one more paper, that is Banking Regulation and Business Law, Banking Regulation and Business Law. These are the 4 papers that have been introduced as a compulsory paper in CIB exam. इलेक्टिव पेपर आपको इस 5 पेपर्स में से कोई एक पेपर्स आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है. अर्लियर वी हैड रिटेल बैंकिंग इन CIB एग्जाम्स as an elective paper. Now they have removed elective paper of retail banking. They will remain, they have just keep intact in 5 paper, that is rural banking, human resources management, information technology and digital banking, risk management and central banking. You have to choose one of them, right? So let's see what more changes has been made in this syllabus. पासिंग क्राइटेरिया पहले की तरह है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है. 50 आपको मार्क्स लाना है, 100 आउट ऑफ 100. यू हैव टू सिक्योर 50 आउट ऑफ 100. 45 मार्क्स ईच पेपर में आपको लाना है. पहले 45 हम लोग एक पेपर में और किसी एक में हम लोग 60 लाते थे तो पास हो जाते थे. लेकिन अभी क्या है कि 45 मिनिमम फर्स्ट अटेम्प्ट 45 अगर आपका ये केस आ रहा है तो आपका मार्जिन 20 मार्क्स आ रहा है, जो आपको 65 आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, तब आप पास करेंगे, ठीक है. तो वो इंटैक्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. फिर आ जाइए आप क्रेडिट में. तो क्रेडिट आपका, अगर आप 2 पेपर पास कर चुके, इफ यू हैव पास 2 पेपर, दैट इज एडवांस बैंक मैनेजमेंट एंड बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपल्सरी पेपर, विल गेट द क्रेडिट. You don't need to appear in again for those paper that you have passed in old syllabus. तो आपको फिर जरूरत नहीं है उस एग्जाम को फिर से देने के लिए, तो आपको एग्जामिशन मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है. उसी तरह इलेक्टिव पेपर में भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा. द लिमिट फॉर पासिंग द एग्जाम 5 अटेम्प्ट मिलेगा आपको, जो JIB में भी मिला था, ठीक है. अभी जो न्यूली इंट्रोडक्शन हुआ है, you'll get 5 attempts in 2 years. In the span of 3 years will get 5 attempts. 3 years 5 attempts. इसमें से जो पहले आ जाता है, if you exhaust 5 attempts before 3 years, सपोज करो कि आपने एक बार दिया, ठीक है, फिर दूसरी बार दिया, ये आपने दिया जून में दिया और ये आपने दिसंबर में दिया, ये आपने सपोज करो कि पहला अटेम्प्ट आपका ये जून में है 2023 में,
तो दूसरा अटेम्प्ट आप कब से दे सकते हो? दिसंबर 2023 में दोगे। तीसरा अटेम्प्ट कब होगा आपका? फिर जून में 2024 में, फिर दिसंबर 2024 में, फिर जून में 2025 में। ये 5 अटेम्प्ट अगर आप दे देते हो तो 3 इयर्स नहीं होगा, आपका एग्जॉस्ट होगा, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई एक मिस कर दिया है, इसमें से नहीं दिया है, ठीक है, तब आप नेक्स्ट जो एग्जाम है जून की जगह पे आप जून की जगह दिसंबर 2025 में भी अपेयर हो सकते हो। तो दीज आर द क्रेडिट यू विल गेट, राइट। तो पासिंग लिमिट आप समझ गए, 3 साल मिलेंगे आपको, 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, और विच एवर इज अर्लियर विल बी रिक्वायर्ड टू री इनरोल देमसेल्फ अफ्रेश, फिर से आपको वापस से इनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ द क्रेडिट। जो वैलिडिटी आपको मिलेगी, वैलिडिटी ऑफ द क्रेडिट विल बी लिंक टू द टाइम लिमिट रूल अंडर द रिवाइज सिलेबस। तो to amplify, in case the candidate has well exhausted 3 attempts under the old syllabus, he will get now 2 more attempts. सपोज करो आपने पुराने सिलेबस से एग्जाम दिया, CIB के एक पेपर का बैकलॉग लग गया, या फिर you passed in 2 papers, 1 papers and 2 papers are backlog। तो ऐसे सिनारियो में IABF आपको 2 मोर अटेम्प्ट देगा न्यू सिलेबस में पास करने के लिए। आइडियली आपने 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, सपोज करो कि आपने तीसरा अटेम्प्ट था, अभी जो एग्जाम कंडक्ट हुआ नवंबर में और दिसंबर में, आपका तीसरा अटेम्प्ट था। नाउ यू हैव ए 1 अटेम्प्ट इन न्यू सिलेबस, बट IABF ने कहा है कि आप अगर 3 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर चुके हो तो आपको हम 2 अटेम्प्ट देंगे। अगर 2 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर चुके हो, यू हैव अ रिमेन 2 अटेम्प्ट्स, देन यू विल गेट 3 अटेम्प्ट्स। ओके, तो दिस इज द न्यू थिंग्स दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन IABF by IABF in CIB syllabus and GIB syllabus. Okay, एग्जाम रजिस्ट्रेशन वैसे ही सेम रहेगा, 5000 सिर्फ चेंजेस इसमें 5000 पे आया है, 5000 प्लस टैक्सेस आपको देने होंगे। ओके, मीडियम इंग्लिश और हिंदी रहेगा पहले की तरह, दैट विल रिमेन सेम, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। पैटर्न ऑफ द एग्जाम, हाँ ये आप एक बार देख लो कि देयर इज अ चेंजेस। तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम, दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज सी देयर आर वन सम ऑफ द क्वेश्चन दैट विल बी विदाउट ऑप्शन। तो आपको क्या करना है ऐसे में, क्वेश्चन पेपर विल कंटेन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, MCQ 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन केस स्टडीज रहेगा, केस लेट्स भी रहेगा, ठीक है। द इंस्टीट्यूट में हाउएवर वेरी द नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फॉर अ सब्जेक्ट में भी वेरी कर सकता है सब्जेक्ट। आप कभी देखोगे मॉड्यूल A से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी मॉड्यूल B से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, या पर्टिकुलर क्वेश्चन से, सपोज करो आप कोरिलेशन और रिग्रेशन इस बार 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो they may ask some more question, maybe they will ask 5 or 6 question from that particular chapter. So they have just reserved the right of changes in subject wise questions, right? So there may be some numerical question. This is important point, you just write it down and keep in your mind while preparing for CIB exam. This is the most important point, that some of the numerical question in some of the CIB subject where no option will be there. इस कुछ क्वेश्चंस होंगे CIB के कुछ पेपर में, वो अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, उसमें ऑप्शन नहीं होंगे, उसको आपको सॉल्व करना है और कीबोर्ड से आपको टाइप करना है। उसमें जो भी आंसर आपको लगता है कि ये कैलकुलेशन करने के बाद आया, उसको टाइप करना है। तो they have not disclosed how many marks that particular question will carry, but I think 1 marks for each question will be there, because they have not mentioned type of question or the number, the question carrying different marks. So this is a most important point, आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये कितने क्वेश्चन है इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, कितने क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन ऑनलाइन मोड, हमेशा की तरह। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, नो बिग रिलीफ फॉर यू ऑल, राइट, नो नेगेटिव मार्क। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो नॉलेज टेस्टिंग होगी, कंसेप्चुअल ग्राफ्स होगा, एनालिटिकल लॉजिकल एक्सपोजिशन होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, केस एनालिसिस, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। एग्जाम 2 घंटे के होंगे। एग्जाम विल बी ऑफ 2 hours। पीरियोडिसिटी एंड एग्जामिनेशन सेंटर, ये आपके छोड़ दो, आप इसको आगे बढ़ो। क्लासेस ऑफ पासिंग क्राइटेरिया, ठीक है। फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट जो आपको पहले था, इसमें एक चीज है पहले ही की तरह 60% अगर आप लाते हो, इसमें 60% अगर आप लाते हो तो आप क्या हो गए, फर्स्ट क्लास से पास हो गए। 60% इन ईच सब्जेक्ट, दैट इज ऑल 5 सब्जेक्ट, देन यू विल गेट एज ए, you will be awarded as a first class pass, and first class with distinction marks if you get 70% marks in aggregate, 70% marks in aggregate, and at least 60 marks in each paper, then you will get the credit of first class with distinction marks. Okay, now प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, वो आपको पता है। स्टडी मटेरियल क्लोजर आ जाइए, कट ऑफ ऑफ गाइडलाइन, ये आपको पता है। एग्जाम, अच्छा ये कट ऑफ ऑफ गाइडलाइन का क्या है, व्हाट इज दिस सी फॉर लास्ट couple of years IABF has introduced that if there is any question related to recent development in financial world, so they have given some framework, they have just given some hint that if there is any question related to recent development in any particular chapter, so that will be covered, that the question will come if suppose if you are appearing in exam between February and July, right, February and July, then the such question from recent development will be asked till 31st December 2023। तो अगर आप अभी जून में एग्जाम दे रहे हो, जून में आप एग्जाम दे रहे हो 2023 में, तो जो रिसेंट डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन आएगा वो 31 दिसंबर तक ही आएगा। ऐसा नहीं कि जो चेंजेस अभी चल रहे हैं या फेब में होंगे या मार्च में होंगे, अप्रैल में होंगे, रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल वर्ल्ड, दे विल नॉट आस्क क्वेश्चन, दे विल आस्क क्वेश्चन टिल 31 दिसंबर 2022। उसी तरह अगर आप एग्जाम दे रहे हो दिसंबर में, दिसंबर 2014 में, तो रिसेंट डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन आएगा वो टिल 30 जून 2023 से आएगा। ओके, नेक्स्ट सिलेबस। एडवांस बैंक मैनेजमेंट, जैसा कि हम लोग कहा था ये पहले से पेपर है। एडवांस बैंक मैनेजमेंट, इसको हम लोग ABM से जानते हैं, ठीक है। इसमें 4 मॉड्यूल हुआ करते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें पहला मॉड्यूल इंडियन इकोनॉमी हुआ करता था, जो चला गया, कहाँ चला गया, वो चला गया, that has been moved from CIB to JIB. Now the first module of CIB of Advanced Bank Management has been moved from here to CIB paper. They have introduced a new paper, that is Indian Economy and Indian Financial System. So that is a part of module B of Indian Financial System, Indian Economy and Indian Financial System. That is a part of. Earlier यहाँ पे ये मॉड्यूल A हुआ करता था, जिसमें हम लोग फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, सप्लाई एंड डिमांड एंड बिजनेस साइकिल, GDP, यूनियन बजट एंड बहुत सारे चैप्टर थे जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, उसको पढ़ते थे। तो ABM जो पेपर है, ABM, इसको स्टैटिस्टिक्स से इन्होंने शुरू किया है। मॉड्यूल A स्टैटिस्टिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक का, वो पहले जब अगर आप देखोगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हुआ करता था। पहले चैप्टर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू फॉर
money. This chapter has been removed. ये chapter जो है ये remove कर दिया गया. They have introduced new chapter, that is a definition of a statistic, importance and limitation, and data collection, classification and tabulation. Right? So one chapter has been introduced in module A in statistic paper. Sampling technique would be remain same. Now you can see, look at here. Measure of central tendency and dispersion of skewness and tortoises. Measures of central tendency and dispersion of skewness and tortoises. ये न्यू चैप्टर है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है, ये न्यूली चैप्टर है. ठीक है. और देखो क्या है इसमें, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. Correlation and regression will remain same. Time series will remain same. Theory of probability, new chapter. ये भी न्यू चैप्टर स्टैटिस्टिक में ऐड किया गया है. ओके. तो पहले प्रोबेबिलिटी नहीं था, अब प्रोबेबिलिटी है. इसमें थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स प्रोबेबिलिटी and distribution of random variable, expectation, standard deviation, binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, credit risk, value at risk, and option valuation. These are the topic that you have to study in statistic module. Okay. Next in this module अगर आप देखोगे, estimation same है, इसमें कोई changes नहीं आया. estimation में linear प्रोग्रामिंग सेम है, सिमुलेशन सेम है. वेरी गुड. सो देयर आर टू चेंजेस इन स्टैटिस्टिक पेपर इन मॉड्यूल ए, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ टू न्यू टॉपिक. दैट वन इज सेंट्रल टेंडेंसी एंड सेकंड इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. एंड वन मोर दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिc, definition of a statistic. First chapter. Three chapters has been introduced, added in this particular module, and 2 modules, if you remember, in statistic 2 modules have been removed. Earlier there was time value for money and bond investment was there in statistic module 2. If you remember, if you see the syllabus of advanced bank management module B, there is a one topic that is a bond investment and time value for money. Next, human resources management. ये भी सेम चीज है. इसमें देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सेम है. ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम है. एम्प्लॉय फीडबैक्स एंड रिवॉर्ड सिस्टम सेम है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेम है. वेरी गुड. नाउ look at here, this particular chapter has been added, conflict management and negotiation. This particular chapter has been added in HRM module B. This particular chapter was not there, they have introduced it in module B. HRM and information technology, ये भी सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है. ठीक है. उसके बाद फिर लेट्स सी मॉड्यूल सी, क्रेडिट मैनेजमेंट. ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट सेम, कोई चेंजेस नहीं. एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम. वर्किंग कैपिटल फाइनेंस सेम. टर्म लोन सेम. क्रेडिट डिलीवरी एंड स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग. दिस इज द न्यू चैप्टर टॉपिक हैज बीन एडेड. अर्लियर देयर वाज अ क्रेडिट डिलीवरी. Now what they have changed, they have just added straight through processing. All the things, I think, documentation, third party guarantee, charge over securities, possession of the security, disbursal of the loans, lending under consortium, multiple banking arrangements, syndication of loan, straight through. I think these are, यहाँ तक जो है वो बिल्कुल पुराने जैसा ये ऐड किया गया है. ये पर्टिकुलर
टॉपिक ऐड किया गया, स्ट्रेट थ्रू लोन प्रोसेसिंग और क्रेडिट अंडर राइटिंग एजेंट्स। ये न्यूली इंट्रोडक्शन है इसमें मॉड्यूल डी में। लेट्स सी व्हाट आर अदर चेंजेस हैज बीन मेड। ओके, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग सेम, रीस्ट्रक्चर ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी सेम, resolution of the straight assets ये न्यूली एडेड है, resolution of the straight assets and under insolvency and bankruptcy court। अगर आपको याद होगा तो ये चैप्टर LRB में JIB में ये ऐड किए गए थे, लास्ट टॉपिक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2026, तो ये भी आपको पढ़ने हैं। लेट्स सी मॉड्यूल डी कंप्लायंस इन बैंक एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उन्होंने इंडियन इकॉनमी को कहाँ भेज दिया, JIB के वाले पास भेज दिया कि भाई अब बहुत दिन यहाँ हो गए, अब जाओ JIB वाले तुम देखो जरा सा केस में क्या क्या चीज़ें आते हैं, उसमें केस स्टडीज आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। तो इन्होंने ये वाला बर्डन दे दिया है किसको, JIB वाले को, भाई वहाँ से प्रिपेयर करके आना, क्योंकि CIB आकर के बिल्कुल चेंज हो जाता है, यहाँ पे मामला बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्यों डिफिकल्टीज बढ़ जाती है। JIB से अचानक से केस स्टडीज आ जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे उसमें ABM में, बट उसमें थोड़े से अकाउंटिंग से रिलेटेड होते थे। बिजनेस मैथमेटिक्स में या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, बिजनेस मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर थे उसमें कैलकुलेशन होता है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ YTM, फॉरेन एक्सचेंज, तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन होता था। डिप्रिसिएशन वाज देयर, कैपिटल बजटिंग में थोड़ा सा। इसमें क्या किया है इन्होंने, ये चैप्टर भेज दिया कहाँ, JIB में। उसकी जगह पे इन्होंने क्या किया है, ये एक नया मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया है, कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये चैप्टर जरूरी था। आप सपोज करो बैंक के लिए ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बैंक में हो, आपके पास कंप्लायंस होना, जितनी भी रेगुलेटरी एंटिटीज है लाइक RBI, SEBI, IRD, लेबर डिपार्टमेंट, जितने भी एसोसिएटेड है बैंकिंग बिजनेस से, उन सब का कंप्लायंस करना जरूरी है। तो ये टॉपिक तो था ही नहीं। आप JIB के सिलेबस में देख लो, CIB के सिलेबस में देख लो कि 2020 टिल 2022 ये इस तरह का कोई टॉपिक था ही नहीं। एक छोटा सा टॉपिक हुआ करता था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसको भी लोग इग्नोर कर देते हैं। बट अभी क्या है कि इन्होंने फोकस किया है कि ऑडिट पे, कंप्लायंस पे फोकस किया, इसलिए एक स्पेशली उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया मॉड्यूल डी। तो मॉड्यूल डी में क्या क्या पढ़ना है, कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक, ये न्यूली ऑडिट है। कंप्लायंस ऑडिट, बहुत तरह का ऑडिट होगा, आप देखते होंगे, आपका इंटरनल ऑडिट होगा, CC ऑडिट होगा, फिर आपका क्या स्पेशल स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा, बहुत तरह के ऑडिट होते हैं। तो इंटरनल ऑडिट भी होता है, IAD जिसको हम लोग कहते हैं, साल में एक बार आते हैं। कंकरेंस ऑडिट होगा जो आपके ब्रांच में रह के ये आपको डे टू डे करते हैं। तो उसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का, इसका डिटेल्स पढ़ना है जो पहले नहीं था। कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इश्यूज एंड कंप्लायंस रिस्क, ठीक है। फिर आगे चलिए, आगे देखते हैं और क्या है। कंप्लायंस कल्चर एंड GRC फ्रेमवर्क, ये पढ़ना है। कंप्लायंस फंक्शन एंड रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस इन NBFC। NBFC को थोड़ा सा इस बार फोकस किया गया है। तो एक अगर देखेंगे JIB में भी एक NBFC का एक अलग से चैप्टर इंक्लूड किया गया है, ताकि आप समझें जिस तरह से इंक्रीज कर रहा है अभी NBFC इंडियन इकॉनमी में, जिस तरह से कंट्रीब्यूशन है, और ख़ास करके माइक्रो फाइनेंस वाले सेक्टर में NBFC का जिस तरह से कंट्रीब्यूशन है, पेमेंट बैंक का कंट्रीब्यूशन है। तो उन सारे चीज़ को देखते हुए दे हैव इंट्रोड्यूस्ड 2 more things, like they have include each and every domain of banking in JIB and CIB सिलेबस। तो अगर आप JIB CIB के प्रिपरेशन कर रहे हैं, JIB आपका कंप्लीट हो गया, CIB कंप्लीट हो गया न्यूली सिलेबस पे, तो आप समझो कि आपके जो डे टू डे बैंकिंग है वो बिल्कुल ही इम्प्रूव कर जाएगा और हेल्प करेगा आपको, क्योंकि यू विल हैव अ लिटिल बिट आइडिया ऑफ ईच एंड एवरी डोमेन। ओके, लेट्स देखते हैं और क्या चेंजेस आया है। कंपल्सरी पेपर तो ये इतने थे। फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक, ये मॉड्यूल डी थे, एडवांस बैंक मैनेजमेंट पे जो ऐड हुए। अब आइए बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट BFM, जिसको हम लोग जानते थे,
BFM, ठीक है। इसमें कौन कौन से ये मॉड्यूल, इंटरनेशनल बैंकिंग पहले से था, एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस ये पहले से था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS एंड अदर रेमिटेंस फैसिलिटी फॉर रेसिडेंट, ये वाले जो चैप्टर हैं ये न्यूली इंट्रोडक्शन है। इससे पहले बेसिक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हुआ करता था, सेकंड चैप्टर, आई डोंट थिंक है या नहीं है, लेट्स सी। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS एंड अदर रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर रेसिडेंट, तो ये न्यूली इंट्रोडक्शन है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, इस चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड NRI अकाउंट, ये बिल्कुल था, पहले भी था। डॉक्यूमेंट्री ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ये भी था। फैसिलिटी ऑफ एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, ये भी पहले से था। ठीक है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये देखो आप, ये एक नया चैप्टर आया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये न्यूली एडेड चैप्टर है, ये न्यूली एडेड चैप्टर है। नेक्स्ट, रोल ऑफ एक्सिम बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया, फेमा, फेडाई एंड अदर, ये पहले से था। ये देखो नई चीजें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC, डोंट कंफ्यूज विद इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, वो आपका IFSC वाला बैंक वाला नहीं है, वो IFSC ये बैंक वाला नहीं है, ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, वो इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड होता है, IFSC कोड जो ब्रांच का कोड होता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन IFSC, दिस वाला IFSC एंड वो वाला IFSC, ठीक है। टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग, ये देखो, ये भी न्यूली इंट्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग, पहले ये नहीं था, अभी 2 चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर ऐड किया गया है। चलिए आगे देखते हैं और क्या। तो ये 2 चैप्टर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एंड टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग, और 1 मोर चैप्टर वाज देयर, दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, 3 चैप्टर, 3rd chapter and 1 more chapter was liberalized remittance scheme and other remittance. These are the 4 chapters that has been changed, that has been newly added in module A of बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आ जाओ रिस्क मैनेजमेंट में, तो अगर आप देखोगे तो रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क सेम है, रिस्क इन बैंकिंग सेम है, रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। ओके, देन वी हैव मार्केट रिस्क सेम है, क्रेडिट रिस्क सेम है, ऑपरेशनल रिस्क एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट ये भी सेम है, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट सेम है, बेसल्स 2 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, बेसल्स 2 फ्रेमवर्क सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस है। मॉड्यूल सी ट्रेजरी मैनेजमेंट, ये भी देखा हुआ लग रहा है, अपना जैसा लग रहा है कि हाँ भाई देखे हैं, जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं CIB के लिए उनको लगेगा कि भाई क्या क्या है, तो ये चेंजेस है, और जो अभी ही शुरू किए हैं उनके लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन कि भाई आपके लिए ये सारे चेंजेस हैं न्यूली। आपको तो वैसे भी पुराने या नए से क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो जीरो से स्टार्ट करना है, बट द पर्सन हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर CIB फॉर लास्ट 1 year or was 6 months, they must be aware of this particular changes that has been changed in earlier what they have and now what they will have। तो मॉड्यूल सी पहचाना जैसा लग रहा है, अपना जैसा लग रहा है, इसको कहीं देखे हैं, कहाँ देखे हैं भाई, तो मॉड्यूल सी में ही देखे थे, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट, ये था पहले से ही, ट्रेजरी प्रोडक्ट था, इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेब्ट प्रोडक्ट, ये भाई सब नए आए हैं, ये नया चैप्टर आया है इसमें, ये भाई साहब को नया लाया गया इस चैप्टर में ट्रेजरी मैनेजमेंट में। फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ये पहले से था, ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट ये पहले से था। चलिए
डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ये पर्टिकुलर चैप्टर शायद न्यूली एडेड है, ये न्यूली एडेड है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर आप आ जाइए ट्रेजरी एंड असेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट, सेम था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट मैनेजमेंट, कंपोनेंट ऑफ एसेट्स, ये सेम है, ये अगर आप देखोगे कंपोनेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैंक्स बैलेंस शीट एंड देयर मैनेजमेंट, सेम था, अभी भी है। बैंकिंग रेगुलेशन एंड कैपिटल सेम है, कैपिटल एडिक्वेसी सेम है, एसेट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म सेम है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट सेम है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट सेम है, आरओसी एंड प्रॉफिट प्लानिंग सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब आइए, ये जो न्यू पेपर है वो एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको आपको जीरो से पढ़ना है। आप अगर इरेस्पेक्टिव मतलब आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो या न्यूली जस्ट सीआईबी इस बार क्लियर हुआ और आप पढ़ना चाहते हो, या पहले से क्लियर हुआ इस बार सीआईबी देना चाहते हो, तो ये आप देख लो, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट प्रोसेस, मॉड्यूल ए रहेगा जिसमें बेसिक ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये चीजें मॉड्यूल ए में रहेगी। फिर आ जाओ मॉड्यूल बी में एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होगा, सोर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज पढ़ने हैं, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लेवरेज पढ़ने हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ने हैं, फिर और क्या है, फिर है कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इफ यू हैव अ लिटिल बिट आइडिया ऑफ AFB, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, एक चैप्टर पहले हुआ करता था कैपिटल बजटिंग, तो उससे लग रहा है सिमिलर लिखा, थोड़ा सा सिमिलैरिटी लिख रहा है, उसमें भी डिसीजन लेना था कि प्रोजेक्ट आपका प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, IRR निकालते थे हम लोग, याद होगा आपको, तो ये उस तरह से उससे रिलेटेड चैप्टर है। चलिए आगे देखते हैं, इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल इन दिस टॉपिक, इन दिस पेपर, क्योंकि पहले आप एक टॉपिक पढ़ते थे, अभी सिर्फ कैपिटल बजटिंग ही चल रहा है। डिसीजन मेकिंग, वेरी गुड। मॉड्यूल सी, वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। पहले अगर आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर था मर्जर एंड एक्विजिशन, दिस इज वन ऑफ द चैप्टर ऑफ PPB, JIB में हम लोग पढ़ते थे, बट यहाँ पे वैल्यूएशन है, मर्जर है, एक्विजिशन है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है। पहले हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते थे कि मर्जर होगा तो क्या कंप्लायंस होगा, कौन किधर जाएगा। यहाँ पे मर्जर एंड एक्विजिशन में शेयर आते हैं, शेयर कैपिटल है, उनका ट्रांसफर कैसे होगा, एम्प्लॉय का क्या होगा, कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या गाइडलाइन है RBI का और कंपनी एक्ट का, वो सारे डिटेल्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हल्का सा वो था कि भाई चेंजेस क्या होते हैं, बट यहाँ पे आपको वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो याद होगा हम लोग को, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी एंड फ्यूचर वैल्यू एन्युटी में ये वर्ड आया था। तो इससे आपका जब कैश फ्लो की बात आएगी तो आप समझ जाएंगे, तो इजी होगा आपको समझने में। अगर JIB के प्रिपरेशन आप किए हैं तो ये पर्टिकुलर टॉपिक था, ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर चलते आगे देखते हैं, अदर नॉन DCF वैल्यूएशन मॉडल, ठीक है, स्पेशल केसेस ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है, मर्जर एक्विजिशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, ये देखो ये भी उससे रिलेटेड है, मर्जर एक्विजिशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल D, इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन, हाइब्रिड बिजनेस, बहुत तरह के बिजनेस आती है अभी, ऑनलाइन बिजनेस भी है और क्या है, ऑफलाइन बिजनेस भी है। विंडो, नाउ वी हैव अ विंडो शॉपिंग, नाउ वी हैव अ ऑनलाइन शॉपिंग, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन हाइब्रिड फाइनेंस। तो यहाँ पे विंडो शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डिबेंचर्स की बात होगी, है ना, वारंट की बात होगी, शेयर कैपिटल की बात होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात होगी, उसकी ऑब्जेक्टिव, वारंट एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एंड देन फीचर ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड,
मेजाडाइन फाइनेंशियल इनोवेटिव हाइब्रिड, इसके बारे में भी आपको पढ़ने हैं। स्टार्टअप फाइनेंस इंपॉर्टेंट, द इमर्जिंग सेक्टर, स्टार्टअप फाइनेंस, बहुत सारे स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सरकार ने गाइडलाइन दिया है, बहुत सारे स्कीम्स डाले हैं स्टार्टअप फाइनेंस के लिए स्टार्टअप इंडिया के थ्रू। तो इसको भी उसमें कैसे कैश फ्लो होगा, कितने टैक्स एग्जम्पशन होंगे, क्या क्या गाइडलाइन है, वो सारे डिटेल्स पढ़ेंगे। बहुत अच्छा, सारी डिटेल्स है इस बात। नेक्स्ट, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, वेरी गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पहले नहीं था, अभी इन्होंने डाला है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। बैंकिंग में भी बहुत सारे होते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इन बैंकिंग, कैसे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस एनालिटिक्स एज ए मैनेजमेंट टूल, ठीक है। ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, स्पेशल पर्पस ऑफ एक्विजिशन। तो दीज आर द टॉपिक दैट यू हैव टू रीड इन पेपर 3, that is advanced business and financial management, compulsory paper. Now one more compulsory paper is banking regulation and business law. सुना सुना नाम लग रहा है। अच्छा, देखते हैं रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, फिर अगेन कंप्लायंस आया इसमें। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक, आहा, ये चैप्टर जाना पहचाना लग रहा है। ये चैप्टर कहाँ का है? हम लोगों ने लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग में पहला जो टॉपिक है, पहला एलआरबी का जो मॉड्यूल है वो है रेगुलेशन एंड कंप्लायंस। उसका फर्स्ट चैप्टर है वो लीगल एंड फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक, वेरी गुड। कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन, एलआरबी का चैप्टर 2, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, एलआरबी का चैप्टर, वेरी गुड। तो अगर आप प्रिपेयर करके आए हैं रिसेंटली जेआईबी के लिए तो डैट विल हेल्प यू। आपको फिर से ज़्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत तो नहीं दिख रही, आगे देखते हैं। तो मॉड्यूल ए में, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग है, पढ़ चुके। रिटर्न इंस्पेक्शन, बाइंडिंग ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक अभी कि भाई ये सारी चीजें, ऑडिट, ऑडिटर, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, ये पढ़े थे, ये भी एलआरबी के चैप्टर का ही पार्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी, उसमें भी पढ़े थे और इसमें भी आपको भी पढ़ने हैं, सीआईबी में भी पढ़ने हैं, वेरी गुड। नाउ Important acts, laws and legal aspect of banking operation, okay? तो इसमें द प्रिवेंटिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, PMLA पढ़े थे हम लोग, PMLA 2002 पढ़े थे हम लोग। इसमें लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़े थे, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, यह भी एक टॉपिक है एलआरबी के मॉड्यूल डी में, ठीक है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, मॉड्यूल डी का वन ऑफ द टॉपिक। लॉ रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज एंड मोड ऑफ चेंज चार्जेस, मॉड्यूल बी एलआरबी। लॉ रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज एंड मोड्स ऑफ चेंजेस, मॉड्यूल बी एलआरबी। क्रिएशन, रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस, मॉड्यूल बी एलआरबी, वेरी गुड। सारे एलआरबी के ही टॉपिक है, वेरी गुड। अरे आपके तो निकल पड़े, इस पेपर में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इंपॉर्टेंट एक्ट, लॉ, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, रिजर्व बैंक आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समेंट स्कीम पहले भी था, अभी भी है, एलआरबी मॉड्यूल सी। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, ये भी एलआरबी का है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी, सरफेसी एक्ट, सरफेसी एक्ट में डेफिनेशन अंडर सरफेसी एक्ट, रेगुलेशन ऑफ सरफेसी एक्ट, ये सारे इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सेंट्रल रजिस्ट्री, ये सारे सरफेसी एक्ट के हैं। मॉड्यूल सी एलआरबी, वेरी गुड। ऑफेंस एंड पेनल्टीज, सरफेसी एक्ट। मिसलेनियस प्रोविजन, सरफेसी एक्ट, ये सारी चीजें हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड अदर क्रेडिटर, रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन सम केसेस, ये भी सेम है बिल्कुल। द रिकवरी ऑफ डेब्ट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, डीआरए, यस। तो ये जो एक्ट है ये भी सेम था। मॉड्यूल सी याद कीजिए एलआरबी का, आपको याद आएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अपेलाइट ट्रिब्यूनल, ये भी पार्ट था। जुरिडिक्शन, पावर, अथॉरिटी एंड ट्रिब्यूनल्स, प्रोसीजर
प्रोसीजर, जुरिडिक्शन, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द ट्रिब्यूनल्स, याद होगा, रिकवरी ऑफ डेप्ट डिटरमाइन ट्रिब्यूनल्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन, सेम, बिल्कुल सेम। अरे वाह। इंट्रोडक्शन टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ये भी एक चैप्टर, न्यूली एडेड चैप्टर, एलआरबी के एक चैप्टर, ये भी एलआरबी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, ये भी एक चैप्टर एलआरबी का। द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1980, लोक अदालत, याद होगा, मॉड्यूल सी। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 2019, मॉड्यूल सी। द लॉ ऑफ लिमिटेशन, मॉड्यूल सी। टैक्स लॉ, मॉड्यूल सी, लास्ट चैप्टर ऑफ मॉड्यूल एलआरबी, टैक्स लॉ, याद होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, मॉड्यूल सी में कॉमर्शियल एंड अदर लॉ विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशन, मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेम है। जो मॉड्यूल डी था एलआरबी का वो सेम आ गया आपको इसमें। देखिए आप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंडीशन एंड वारंटीज, अनपेड सेलर, डेफिनेशन एंड मीन, ये देखो आप, देखो, कंडीशन एंड वारंटी, ओके, अनपेड सेलर, डेफिनेशन, मेजरिंग नेचर ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर, रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी, minor admitted to the benefit of partnership, dissolution of firm, effect of non registration, definition of feature of company, ये सारे चैप्टर मॉड्यूल बी के हैं, एलआरबी के हैं। तो बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ इज नथिंग बट द एलआरबी बुक। आप अगर जेआरबी पढ़ें तो ये दिस गोना बी केक वॉक फॉर यू। लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप सेम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेम, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वहां भी था सेम, बिल्कुल सेम, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी सेम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, आई थिंक दिस हैज बीन न्यूली एडेड, ये न्यूली एडेड है। और इलेक्टिव पेपर में कोई चेंजेस नहीं है, पहले जैसे थे। इलेक्टिव पेपर आप आ जाओ, इलेक्टिव पेपर रूरल बैंकिंग है और HRM है, उसमें सेम है। मैं ये कहूँगा, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CIB एंड इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू appear in June 2023, then I would suggest earlier what we had suggested our students, that just go for retail banking. It is the easiest way to crack CIB with. तो अभी तो रिटेल बैंकिंग तो है नहीं, तो उसमें से उसके सेकंड इजीएस्ट पेपर कौन हो सकता है? तो मैं ये बोलूँगा आप गो फॉर HRM, क्योंकि आप मॉड्यूल बी एडवांस बैंक मैनेजमेंट में जो पोर्शन आप पढ़ते हो, तो आप मान के चलो 30% पोर्शन आप वहाँ से भी कवर हो जाता है। तो यू विल हैव अ लिटिल बिट आइडिया व्हाट इज HRM ऑल अबाउट इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम HR डिपार्टमेंट, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम डिपार्टमेंट दैट इज रिलेटेड टू HR, तो आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। अगर आप HR नहीं लेने जाते हो तो आप पूछोगे थर्ड इजीएस्ट क्या है पेपर, तो देन आई विल से कि रूरल बैंकिंग में जॉब। बाद बाकी आप अगर आप IT फील्ड से हो तो गो फॉर IT वाले। अगर आपको कोई और पेपर है, जैसे लाइक यहाँ पे यहाँ देख लो, रूरल बैंकिंग है, रूरल बैंकिंग आप ले सकते हो। फिर सारे पेपर हैं, इसको हम लोग डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप चेक कर लो, आप आ गया है। तो ये सारे चेंजेस हैं CIB में। आप एक चीज़ आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, पहले क्या था, थोड़ा कैजुअली लेते थे हम लोग JIB CIB को, यार 2 महीने हाथ में है, विल बी, मतलब आसानी से क्रैक हो जाएगा। बट नाउ द सिनेरियो हैज़ चेंज। अगर आप ये सोच रहे हो कि IB अगर ले लेंगे और क्रैक कर जाएंगे, नहीं, इस बार नहीं होगा, अब से नहीं होगा, क्योंकि 4 पेपर्स हैं, 5 पेपर हैं, आपको 5 संडे लगातार एग्जाम्स देने हैं, तो प्रिपरेशन भी आपको उसी हिसाब से करना। पहले 2 से 3 महीने लगता था आइडियल सिनारियो में, अभी आपको 4 महीने लग जाएंगे। आप मान के चलो हर एक पेपर में सबसे ज़्यादा वक्त आपको लगेगा बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसके बाद एडवांस बैंक मैनेजमेंट में। ये 2 पेपर आप मान के चलो कि आपको 2 महीना तो चाहिए ही चाहिए।
बिना, अगर आप थॉरली पढ़ना चाहते हो, सिर्फ आप केस स्टडीज़ बनाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ना है तो आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। एक चीज़, बाकी जो 2 पेपर हैं ठीक है, ये 4th पेपर है जो बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ है, वो LRB का ही पेपर है, तो उसमें आप पढ़े हुए तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बट हाँ, वो उनके लिए जो JIB में पढ़े हुए हैं रिसेंटली, उनको कंटेंट याद होगा कि भाई ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप न्यूली, आप पहले से याद दिए नहीं है JIB, और या बहुत पहले दिए हैं आपने, अभी CIB प्रिपरेशन करना है, तो आपको मान के चलना है कि ये जो पेपर है ये भी कम से कम 20 डेज चाहिए होगा इसको प्रिपरेशन करने के लिए, प्लस इलेक्टिव पेपर भी है, तो थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, वो अप्रोच थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको, जैसे हम लोग क्या है कि अभी JIB का शुरू हो गया है, CIB का भी पेपर हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, अभी आप इनरोल कर सकते हैं, आपको सारे मॉक टेस्ट, केस स्टडीज़, वीडियो लेसन सब अवेलेबल मिल जाएगा। हाँ, ये जो लास्ट पेपर है जो अभी न्यूली ऐड हुआ है, एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, में भी कुछ दिन के बाद मिले, बट हाँ, एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ का पेपर आपको वीडियो लेसन्स मॉक टेस्ट के साथ अवेलेबल हो जाएगा। तो आई होप कि ये थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। लिंक में जाए, आप IABF के साइट पे जाए, साइट पे जा करके आप इसको आराम से डाउनलोड भी करके आराम से देख भी सकते हैं डिटेल्स में। होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू।